टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बात करूंगा, 5, 7, 8 एंड 9 ये चारों टॉपिक के बारे में बात करूंगा। 6 जो है इन्वेंटरी कंट्रोल, दैट आई यूज्ड टू टेक दिस सेशन अर्लियर जब पीआईएम था मैं। अभी पीआईएम साहब जो है दिलीप गुप्ता साहब, ही विल बी टेकिंग योर सेशन, ठीक है। सो इन्वेंटरी कंट्रोल तो मैं उससे बात नहीं करूंगा। देन देयर विल बी एन एग्जामिनेशन 50 मार्क्स का होता है, दैट आई विल बी कंडक्टिंग, आई विल आल्सो इवैल्यूएट दिस एग्जामिनेशन। So on that face-to-face doubt clearance session, I will also talk about the pattern of question it will come and all those things. Okay. Okay. Before I start, I just want to know who is the CR of 3A and 3B. Can you just come and introduce yourself? Sir, I'm Shuchita. Yeah. Sir, I'm the CR of 3B. 3B. Okay. Sir, I'm from And IRSEE. Okay. IRSEE. Okay. Then I think Assis was for 3A. Sir, for ये चिराग जो है इस Chirag. Okay. Chirag, can you just switch on your mic and speak? Chirag? Yes, sir. Yeah, I am calling you for such a long time. Just introduce yourself and I just want to know who is the CR basically. So there is network issue. Okay, I have got your voice. I hope Chirag will meet on the day of face-to-face interaction. Okay, fine. Let me start the topic today. Okay, friends, when we talk about materials management, which is my topic today, so why material management? Why it is required first? That question comes to your mind. Whether it is required at all, materials management, जैसे HR management, हर चीज में हम लोग management की बात करते हैं आजकल, तो whether materials management itself is required. Let us start from the fundamentals. What is the need for an industry? कोई एक इंडस्ट्री में बैठा था तो उसको क्या चीज चाहिए? These 5 M's that you require: men, machine, material, money and management. ये 5 चीजों में से एक जब मिलता है तब जाके एक इंडस्ट्री स्टार्ट होता है, ठीक है। Now when we talk about starting of an industry, can somebody tell me why somebody sets up an industry? कोई भी एक इंडिविजुअल या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों इंडस्ट्री बिठाना चाहता है? Can somebody tell me? Okay, I need a lot of participation, and if you can switch on the mic there and speak, I'll be very happy also. Okay. For earning money. For earning money, very good, yeah. Your fundamentals are very clear. Okay. Anybody else who can also speak something about that? Anudeep, was it Anudeep who was studying or somebody else who said make money? Suyash. Yeah, okay. So both of your ideas match. So okay, both are the same, or maybe nothing much difference about that. Okay, what else? Sir, to give employment, to give people employment. Okay, employment. कौन ये अपना प्रशांत बोल रहे हो? Yes. Or But also maybe it may be the passion of the person who is setting up the industry. Personal? His passion, like Elon Passion. Musk, he is passionate towards electric. To do something, to set up an industry, to work independently and all those things, isn't it? Yeah. Then any other idea coming? Yeah, Akash Reddy. So there's a good point he has already told. But you should speak. Akash, why don't you come and speak? That will be nice to hear from your voice. Sir. Actually, there is a lot of demand in the market right now. In the COVID situation, there's a lot of demand in the market to bring up the demand, and also at the same time they have to make profits, so that they can sustain the business. A demand, and of course you are pointing out profit, isn't it? Yes.
Yes, sir. So we have reached quite a good number of points here. So basically, you want to earn some money. Of course, you want to some money, but say you have to, if for something of an student say आपको बोला आ जाएगा कि 100 रुपए इन्वेस्ट करिए और 90 रुपीस अर्न करिए, तो आप बोलेंगे नहीं 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 नहीं, ये अर्न कहाँ हुआ, ये तो लॉस मेकिंग हो गया. So both earning and making money मतलब basically money more than your investment, isn't it? So basically again it comes to the Akash point of making profit, उसी में ही आ गया. एम्प्लॉयमेंट आप देते हैं, उसमें एम्प्लॉयमेंट देते हैं, आपका पैशन होता है कुछ एक करने को, कर दिखाने को. टू मीट द डिमांड, व्हेन यू से दैट टू मीट द डिमांड, इट इज डिमांड, देयर इज अ डिमांड एंड देयर इज अ लैक ऑफ सप्लाई, इजंट इट? सप्लाई कम हुआ है. जैसे आप जियो आ गया मार्केट में, जियो के पहले था, देयर वर एयरटेल, वोडाफोन था, आइडिया वाज देयर, दे वर सेपरेट एंटिटीज एंड सो मेनी, एयरसेल, क्या क्या नहीं था उस टाइम में. तो क्या उसमें जरूरी था कि एक जियो आने का? नहीं होने से भी चल रहा था हमारा काम, बट जियो फाइंड आउट दैट देयर इज अ सप्लाई एंड डिमांड गैप, कहीं पे एक गैप हो रहा है. वो उस गैप को बोला कि इसको अगर हम टैप करेंगे मार्केट को, तो I can earn some money, make some profit, make employment, it's a passion, and finally profit making. Okay, now when I talk about profit making, is it the profit or profit? Yeah, market capture. Yeah, correct, Prashant. It's market capture. In fact, Jio became a leader within another 5-6 months of joining in a year. It became the market leaders. Okay, so basically, basic aim is to make profit. Of course, वो पहले लॉस में दिया, पहले तो फ्री में दे दिया, तो वो ऐसे नहीं तो कोई चैरिटी तो करने नहीं आया है एक कंपनी, तो उसको वो करने का स्ट्रैटेजी कि नहीं ठीक है तो फ्री में दे दो, तो लोगों को ले आओ अपने तरफ, फिर अपना कस्टमर बना दो. तो उसमें ही सक्सीडेड. बेसिकली इफ यू सी द प्रॉफिट, व्हेन वी टॉक अबाउट प्रॉफिट, अभी जितना तक हम लोग बात कर रहे हैं, प्रॉफिट इज व्हाट? बेसिकली ये प्रॉफिट होता है, प्राइस और कॉस्ट का डिफरेंस ही प्रॉफिट होता है आपका. कोई भी चीज आप 11 रुपए में बेचते हैं और 10 रुपए लगता है बनाने में, तो 1 रुपया प्रॉफिट होता है. सो बेसिकली दिस इज द प्रॉफिट. नाउ हाउ टू इंक्रीज प्रॉफिट? आपको हमेशा दिमाग में रहेगा प्रॉफिट को बढ़ाना है, या बेटर वे मैं कहूंगा कि हाउ टू इंक्रीज द प्रॉफिट मार्जिन. ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन का डेफिनेशन क्या होगा? प्रॉफिट मार्जिन विल बी प्रॉफिट divided by cost. ठीक है, profit is again what? Price minus cost. So basically how to increase the profit margin? तो कैसे करेंगे? या तो प्राइस बढ़ा दीजिए या कॉस्ट को कम कर दीजिए, whatever way. प्राइस कब तक बढ़ा सकते हैं? Only to the point of willingness to pay. उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता है. अगर आप बोलेंगे मेरा एसी सेकंड एसी फेयर को 2000 रुपए से 4000 रुपए कर दूंगा, तो पीपल विल गो टू फ्लाइट. बोलेंगे नहीं 3000 रुपए में तो फ्लाइट मिल रहा है, 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा, मैं क्यों इसमें जाऊंगा, ट्रेन में 4000 रुपए दूंगा. सो एज लॉन्ग एज दे सी वैल्यू इन योर प्रोडक्ट, दे आर विलिंग टू पे, एंड योर प्राइस कैन गो अप टू विलिंगनेस टू पे. बट एट द सेम टाइम थिंक अबाउट द अदर साइड ऑफ द स्टोरी. आपने इंडियन रेलवे का ही ले लीजिए. हम लोग क्या करते हैं? टिकट का प्राइस फिक्स कर रख देते हैं. दिवाली में हो या फिर नॉर्मल विंटर सीजन में, जब स्लैग डिमांड नहीं है, वो टाइम द प्राइस विल बी से 1000 रुपीज फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली. अब ये हो जाता है एक्चुअल प्राइस ड्यूरिंग दिवाली मे बी 2500, isn't it? और आप बेच रहे हैं उसको 1000 में, तो क्या हो गया? 1500 रुपया इसके पकड़ में गया, कस्टमर के पकड़ में. ये कस्टमर से या तो कस्टमर देता है या फिर मिडिल मैन आ जाता है बीच में, लेकिन ये आपको नहीं आया. दिस इज नॉट योर पार्ट, ये वो चला गया. तो आप अगर प्राइस को कम रखेंगे, देन विलिंगनेस टू पे, तो ये वाला प्राइस ले लेगा, या तो कस्टमर के पकड़ में जाएगा, या सो दैट्स व्हाई पीपल व्हेन दे गेट अ कंफर्म टिकट ड्यूरिंग दिवाली, दे फील एज इफ दे हैव वन ए लॉटरी. क्यों? वो राजी था 2500 देने के लिए, ये तो आप ही जो कि 1000 रुपया में दे रहे हैं उसको. तो ये खुश हो रहा है कि अरे मेरे को फायदा हो गया. वो ऐसा बिहेव करता है जैसे कि उसको लॉटरी लग गया. वही सीट अगर 1 महीने के बाद जब जाता है तो उसको 1000 रुपया देना पड़ता है, फिर वो ही स्टार्ट्स क्रिबिंग, यार इतना पैसा लेता है रेलवे से और ये, लेकिन उस दिन वो बोले 2500 भी ले लो, लेकिन मेरे को आज अच्छा सा एक बार दे के ले लो. ठीक है, ये हो गया प्राइस एंड विलिंगनेस टू पे. ऑन द अदर साइड ऑफ द स्टोरी इट इज द कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ये जो है
ये आपके फार्म मतलब फार्म या सेलर या वॉट एवर यू से उसके पार्ट में है। कॉस्ट आपका आप कुछ आता है, मान लो एक कोई आइटम बनाने का 100 रुपया कॉस्ट है, बट इफ यू कैन मेक इट एट 80 रुपीज, तो ये 20 रुपया किसके पकड़ में जाएगा? ये आपके पकड़ में जाएगा। ठीक है, आप जो जो आप बेच रहे हैं उसके उसी आपके पकड़ में ही ये जाएगा। सो बेसिकली यू वांट टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज द प्राइस। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, थिंक अबाउट दिस, हाउ व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक देख लीजिए, जैसे मान लो आप एक ग्रुप डी स्टाफ को इम्प्लीमेंट अपने रिक्रूट करते हैं, हमारे आज के डेट में 25,000 रुपया देते हैं हम लोग उसको सैलरी, जबकि सेम वर्क अगर आप बाहर जाएंगे तो 8,000 रुपया 5,000 7,000 में मिल जाएगा। सेम काम जो करता है, जो एक ग्रुप डी स्टाफ यहाँ पे करता है, 7-8 हजार में कोई भी बाहर का मार्केट वैल्यू 7-8 हजार है। नाउ यू आर पेइंग 25,000 देते हैं और उससे 8,000 का काम एक्चुअली है, तो ये 17,000 आपका लॉस हुआ, आप यू आर पेइंग एक्स्ट्रा। सो बेसिकली योर एम इज टू रिड्यूस दिस एंड इंक्रीज दिस, तब जाके क्या होगा, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। प्रॉफिट मार्जिन अगेन आई विल डिफाइन एज प्रॉफिट vis-a-vis cost, that is sales price minus cost divided by cost. Now your aim is to increase this or decrease this। ठीक है, ये या तो ऊपर करिए या नीचे करिए। नाउ प्रॉब्लम कम, सेल्स प्राइस को कैसे बढ़ाया जाए। सेल्स प्राइस को बढ़ा देंगे आप फट से विदाउट डूइंग एनी अदर एक्टिविटी। मान लो आप बोलेंगे ठीक है 2,000 रुपये सेकंड एसी 3,000 बना देते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस, अगेन फ्लाइट कम्स इनटू पिक्चर। छोटे लोअर लेवल का ये में अगर आप ऐसे ही अगर नॉन एसी का बढ़ा देंगे या फिर ऑन रिजर्व क्लास को बढ़ा देंगे तो पीपल गो टू रोड। तो बेसिकली सेल्स प्राइस इज वेरी डिफिकल्ट टू इंक्रीज बिकॉज पेप्सी में पतंजलि विल कम, बल्कि अरे मेरा तो प्रोडक्ट और भी बढ़िया है ना, हेल्थ का कोई इशू है, हेल्दी भी है और आपको फीस भी देगा, वॉट एवर एंड सो बेसिकली कंपटीशन टेक्स ओवर इन दैट केस। सो सेल्स प्राइस इज वेरी डिफिकल्ट टू इंक्रीज। सो आपके पास क्या ऑप्शन रहा टू इंक्रीज द प्रॉफिट मार्जिन, यू हैव टू रिड्यूस द कॉस्ट। अब कॉस्ट का क्या क्या कंपोनेंट है, ये 3 कंपोनेंट आपको जो दिख रहा है उसमें, तो मैं पहले फिक्स कॉस्ट से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, फिक्स कॉस्ट क्या होता है, चाहे आप कुछ काम करें ना करें कॉस्ट फिक्स हो जाता है। जैसे आप लोग अभी आए हो यहाँ पे, इससे पहले 6 महीना तक 5 महीने तक हमारा यहाँ पड़ा था, नोबडी वाज देयर इन दिस कैंपस पूरा ही। लेकिन हॉस्टल का जो ये है क्लासरूम्स है ये सब तो था ही, उसका खर्चा जो होता था वो तो दैट वाज कांस्टेंट, उसको हम कुछ कर नहीं सकते हैं। क्यों, वेदर यू कम एट 250 नंबर्स और यू कम 100 नंबर्स, हम लोग को इतना ही फैसिलिटी रखना पड़ेगा, दैट इज फिक्स कॉस्ट। सो यू कैन नॉट टच दैट। सो और क्या रह सकता है, मैन पावर का आप टच कर सकते हैं। कैन यू टच मैन पावर? यस यू कैन, बट व्हेन यू से दैट मैन पावर को टच कर सकते हैं, प्रॉब्लम कहां पे आता है। जैसे आप लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ इंडियन रेलवे ओनली, मान लो अराउंड 90s 1990 में, उस टाइम में हमारा स्टाफ स्ट्रेंथ वाज अराउंड 18 लाख, आज के डेट में 13 लाख के आसपास है। तो और काम काफी बढ़ा है, 3-4 गुना काम बढ़ गया है। तो वील से दैट वी हैव इफेक्टिवली रिड्यूस्ड मैन पावर। इफ यू सी, काफी कम हो गया मैन पावर कॉस्ट, सॉरी मैन पावर जो 18 लाख से 13 लाख कर दिया, लेकिन काम बढ़ गया 3-4 गुना। बट डज दैट इंप्लाई दैट आवर मैन पावर कॉस्ट हैज आल्सो रिड्यूस्ड? नो, रादर इट इज गोइंग ड्रास्टिकली अप। ठीक है, जैसे अगर आप देखेंगे ये 10 साल का मैं कंपैरिजन दिया हूं, जो कि 6 पे कमीशन से पहले और 7 पे कमीशन के बाद का फिगर दे रहा हूं। इफ यू सी दिस यू विल फाइंड दैट एब्सोल्यूट टर्म में 4 गुना से ज्यादा वेजेस बढ़ गया है, और इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू इट हैज इंक्रीज फ्रॉम 35% टू 70%। सिर्फ वेज बिल की बात कर रहा हूं मैं। थिंक अबाउट दिस, इफ वी आर पेइंग 70% ऑफ आवर इनकम ऑन दिस, क्या आप इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, मटेरियल कहाँ करके कोच कहाँ बनाएंगे, ये पहले वो करेंगे तब ना, नंबर ऑफ ट्रैक्स ज्यादा बिछाएंगे तब जाके आप ज्यादा ट्रेन चला सकते हैं ना।
ये तो आप पहले वॉइसेस में ही दे दिए सब पैसा, जबकि आपको मैं तो फिर बोल रहा हूँ कि हम लोग वी हैव बीन एबल टू रिड्यूस द मैन पावर, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से, मैन पावर कॉस्ट रिडक्शन इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। उसमें आई हैव नॉट टॉक्ड अबाउट द यूनियन इश्यूज, द एचआर इश्यूज, क्योंकि आप अगर मान लो कि बोलेंगे कि नहीं लेट अस रिमूव सम पीपल, ये तो जैसे 13 लाख में से ये 2 लाख तो काम नहीं करते हैं, लेट अस remove them. You will have industrial unrest and all those things. So nobody wants to take that type of risk. So और रहा क्या, मटेरियल। मटेरियल ही एक चीज है जिसमें आप कॉस्ट कम कर सकते हैं, जो इनपुट कॉस्ट जो है कम कर सकते हैं। और मटेरियल्स डोंट साउथ, दे डोंट मेक यूनियंस कि नहीं मैं हम लोग चलो आज नारेबाजी करते हैं, नहीं, मटेरियल्स कैन नॉट डू इट। सो दैट द ओनली अदर वे इज टू reduce the material cost. ये the graph shown in the below I have taken from Times of India. इसमें if you see this, ये अगर हम लोग इस बार थोड़ा सा एडवांस नहीं लेते दूसरे एनटीपीसी एंड ये अदर ये, तो हमारा ऑपरेटिंग रेशियो जो हमारा मेजरिंग एफिशिएंसी है, इट हैव गॉन मोर देन 100%। मतलब जितना पैसा कमा रहे हैं उससे ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। नाउ इट इज हाई टाइम वी अंडरस्टैंड how to reduce the cost of operation, okay। so जितना हम reduce करेंगे तो operating cost कम हो जाएगा। if you go by this equation, if you see, it is better to increase the sales price more than 10%, then उससे ज्यादा बेटर है कि कॉस्ट को रिड्यूस कर 10% रिड्यूस करे। क्यों? उसका इफेक्ट प्रॉफिट में भी ज्यादा आएगा और कॉस्ट में, सॉरी प्रॉफिट में। सपोज आप कोई आइटम का सेल्स प्राइस है 11 रुपया, कॉस्ट है 10 रुपया, तो 1 रुपया प्रॉफिट हुआ। देयर कैन बी टू वेज, 1 रुपया आप सेल्स प्राइस बढ़ा दीजिए, कॉस्ट को 1 रुपया कम कर दीजिए। इफ यू सी, इफ यू इंक्रीज द सेल्स प्राइस बाय 1 रुपी, it will affect your ये as 10% to 20% हो गया प्रॉफिट। बट इफ यू रिड्यूस द कॉस्ट बाय say 10 rupees to 9 rupees, now what happens, 11 rupees minus cost is equal to 2 rupees divided by 9 rupees, so it is more than 20%. So the effect of cost reduction is much more than the sales price increase, okay। So that's why we are focusing on that part when we talk about all this cost, and when we say that materials में ही कम कर सकते हैं, now comes the role of materials management. How to reduce this cost? By doing materials management, okay। So now this starts here starts the materials management part, and now let us say what is how do we reduce this cost, materials cost? Of course by doing very good materials management, but let us first understand what are the costs involved with a material। materials में क्या क्या cost होता है? एक cost होता है material, सॉरी, एक cost होता है cost of material, एक पेन है और एक है कॉस्ट ऑन मटेरियल, ठीक है। इसका क्या मतलब है, एक पेन है 100 रुपया का दाम है, दैट इज कॉस्ट, बट उसको परचेज करना है, उसको जाके लेना है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यू कीप इट इन द ये इन्वेंट्री कॉस्ट, इसका इशूइंग कॉस्ट, इसको हैंडलिंग कॉस्ट, प्रिजर्वेशन करके रखना है, सर्वे इसको इशू करने में जो पैसा खर्चा होगा, फिर अगेन इट हैज टू बी सप्लाइड टू द यूजर, ये सब मिला के और एक कॉस्ट होता है जिसको कहते हैं कॉस्ट ऑन मटेरियल। तो 100 रुपया होगा उसका कॉस्ट ऑफ मटेरियल, 5 रुपया हो सकता है कॉस्ट ऑन मटेरियल। इन मटेरियल्स मैनेजमेंट we try to reduce the cost of both cost of material, cost on material. How? Let us see. The functions of material management starts from planning. So how much you could require? Suppose you are a consignee, या आप कल जाके एमी बनेंगे, कहीं पे एसी रहेंगे, तो आपके ऑफिस में आपको देखते हैं कि 10 पैकेट पेपर चाहिए। दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट एग्जांपल आई एम गिविंग, बिकॉज हर डिपार्टमेंट को चाहिए, ये हर डिपार्टमेंट हर कॉन्साइनी को पेपर चाहिए, A4 साइज पेपर, ठीक है। सो आपको 10 पैकेट पेपर चाहिए, तो आप बोलते हैं कि मुझे 10 पैकेट पेपर चाहिए। योर सिस्टर डिपार्टमेंट इज देयर, एक मैकेनिकल का है, वो बोलता है कि हमको भी 10 पैकेट 15 पैकेट पेपर चाहिए।
फिर ऐसा होता है देर आर 10 ऑफिसर्स देयर, अगेन एक डिवीजन होता है, डिवीजन को मान लो 800 पैकेट पेपर चाहिए, इस टाइप का होते होते देयर विल बी फ्यू डिविजन्स एंड इन अ जोन देयर टोटल रिक्वायरमेंट विल बी 10,000 पैकेट्स। ओके, तो आपका 10 पैकेट है लेकिन टोटल रिक्वायरमेंट 10,000। नाउ स्टोर्स विल प्रोक्यूर ऑल दिस आइटम्स। कैसे करेगा? प्लानिंग आप देते हैं, आपका देते हैं क्या कितना लेना है, स्टोर्स सी कि कितना एक्चुअली चाहिए, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड है। आप बोलते हैं 10 पैकेट लेकिन हो सकता है आप 6 पैकेट ले रहे हैं महीने में, तो हमारे पास वो रिकॉर्ड है। शुड आई बाई एट 10? ऑफ कोर्स नो। क्यों? वो ओवर स्टॉक हो जाएगा। तो मुझे वो रियलिस्टिक एस्टिमेट करना है उसका क्वांटिटी, टाइम। उसके बाद फिर क्या होता है कि उसे कब खरीदना है ये देखना है। मेक एंड बाई डिसीजन लेना है। अगर कॉस्टली होता है खरीदना तो हम खुद बना लेंगे, ठीक है, ये सब डिसीजन हम लोग लेते हैं। प्रोक्योरमेंट, फिर इसमें इसके बाद प्रोक्योरमेंट आता है, ताकि आई विल प्लान माई प्रोक्योरमेंट इन सच दैट यू विल गेट मटेरियल अनइंटरप्टेड, पूरा ही ये होगा। बट अगर मैं बोलूंगा कि अच्छा, तो आप तो हमेशा आप लोग भी अपने ही खुद के लिए खरीदते हैं ना, यू बाई सो मेनी आइटम्स फ्रॉम अमेजन, फ्लिपकार्ट खरीदते हैं, तो आप भी तो प्रोक्योरमेंट करते हैं। नो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बाइंग एंड प्रोक्योरमेंट, ठीक है, परचेज एंड प्रोक्योरमेंट। उसमें डिफरेंस क्या है? प्रोक्योरमेंट इज ए होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स परचेज। उसमें आप उसको देखते हैं कि इसमें हमारा जो हमारे वेंडर डेवलपमेंट करना है, मार्केट स्टडी करना है, मार्केट सर्वे करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द ट्रेंड्स, हाउ द मार्केट इज बिहेविंग, ये सब करके उसी हिसाब से परचेज करना है। ये होता है प्रोक्योरमेंट। ओके, परचेज में ये सब कुछ नहीं देखते आप, जस्ट यू गो टू द साइट। आजकल तो हर चीज ऑनलाइन होता है, अमेजन में जाते हैं, जाके सीधा जाते हैं, ढूंढते हैं, अच्छा ये पसंद आ गया, इसको ले लेंगे हम, ये आप करते हैं, ठीक है, ये हो गया। बट आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग मोर, दैट इज पब्लिक प्रोक्योरमेंट। ओके, पब्लिक प्रोक्योरमेंट का क्या मतलब है? दो प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट का 5 प्रिंसिपल्स हो सकता है, ऑलरेडी यू मस्ट बी नोइंग दिस। 5 R's ऑफ प्रोक्योरमेंट आर क्वांटिटी, क्वालिटी, टाइम, प्लेस, कॉस्ट। ये 5 प्रोक्योरमेंट का ये है, वो राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी, राइट कॉस्ट, ये 5 होता है प्रोक्योरमेंट का पॉलिसी। देयर इज अनदर एक्स्ट्रा, ठीक है, ये 5 छोड़ के और एक वो है राइट प्रोसीजर्स, ठीक है। व्हेन यू आर a public procurement authority like us railways, हम लोग वी कैन नॉट से दैट नहीं, मुझे तो सोनी टीवी पसंद है, मैं सोनी टीवी ले लूंगा, बस मेरी मर्जी। नो, यू आर नॉट अलाउड। Public procurement policy says that you must follow the twin principles of transparency as well as equal opportunity, ठीक है, ये दोनों को आप कभी ना भूलें, बिकॉज यू विल बी प्रोक्योरिंग गुड्स हो, सर्विस हो, वर्क्स हो, कुछ भी करें, transparency and equal opportunity. You cannot say no to anybody who is otherwise eligible. Transparency, whatever you are doing is questionable. कोई आरटीआई में 10 रुपया देके पूछेगा, आपको बताना पड़ेगा। योर प्राइम मिनिस्टर कैन आस्क, योर सीनियर ऑफिसर कैन आस्क, विजिलेंस कैन आस्क, एनीबडी कैन आस्क यू क्वेश्चन एंड यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट। सो ये मिला के पब्लिक प्रोक्योरमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट कम वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या होता है? रिसीव, इंस्पेक्शन, हमारा मटेरियल आएगा, उसको रिसीव करेंगे, प्रिजर्वेशन करना है, स्टोरेज करना है, उसको प्रॉपरली स्टैकिंग करना है, ये सब चीजें मिला के वेयर हाउसिंग होती है। व्हेन यू हैव गॉट huge number of items, warehousing becomes very difficult. See, the items we are keeping in railways, if you see, wheel से लेके एक्सेल से लेके रिले देख लीजिए, बस so many varieties of items, all are cannot be kept in the same way. जैसे आप केरोसिन के पास में रिले रख लेंगे क्या? नहीं रख पाएंगे। केरोसिन के पास आप जूट बैग रख लेंगे तो क्या होगा? So you understand the difference. So but wheels and axle इस टाइप का जो लोहा लक्कड़ जिसको हम लोग कहते हैं, we can throw it somewhere and we don't bother so much. ठीक है, पड़ा है, कोई ना कोई ले रहा है, but can you do the same with silver? No. जैसे आपको पता होगा, सिल्वर इज ऑल्सो स्टॉक आइटम इन रेलवेज। हमारे पास सिल्वर भी रखते हैं, सिल्वर से लेके ब्रोंज, सो मेनी नॉन फेरस आइटम्स, कॉपर, सब कुछ है। सो एवरीबडी हैज देयर ओन way of warehousing. So that becomes a very important subject in the whole materials management. Then inventory control. Inventory control के बारे में, because there will be a full class, I will not be talking much. The only thing I want to say, inventory control is basically to reduce, to minimize the idle money. Okay, because the moment you buy some material and don't use it, it becomes inventory. ठीक है, so material lying in your godown is inventory.
जब तक उसको यूजफुल पर्पज में नहीं लगाए, इट बिकम्स इन्वेंटरी. ओके. स्क्रैप डिस्पोजल. आपको लगता होगा स्क्रैप डिस्पोजल क्या है, ऐसी भी कौन सी एक्टिविटी है इसके लिए? सी, इंडियन रेलवे इज वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन, वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन. एवरीथिंग इन इंडियन रेलवे इज इन अ बिग स्केल. तो अगर आप, मैं आगे स्लाइड्स में दिखाऊंगा व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्क्रैप डिस्पोजल वी डू इन इंडियन रेलवे, विल बी रियली सरप्राइज. मैं आगे दिखा के आपको ये करता हूँ, बताता हूँ. डिस्ट्रीब्यूशन, मटेरियल हैज टू रीच टू द farthest consignee किसी and at the most efficient, cost effective, fast way. ठीक है. So how to get it, that the whole concept is distribution. And final cost control and reduction. सब करने के बाद हमको ये भी देखना है कि मटेरियल जो हमको मिल रहा है, whether we can use some alternative material, उसके instead of whatever we are using, can we go for an alternative cheaper material without compromising on the quality. ठीक है. ये इस बेसिस पे हम लोग कॉस्ट कंट्रोल एंड रिडक्शन करते हैं. देन वी आल्सो फॉलो सम मटेरियल्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल, सम जैसे जेआईटी है, जस्ट इन टाइम, एमआरपी है. ठीक है. ये सब हम लोग फॉलो करते हैं. ठीक है. सो दैट टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड कॉस्ट ऑन मटेरियल बोथ आर रिड्यूस. व्हाट वी कॉल ऑल दिस प्रोसेस, इफ वी कॉल इट क्रेडल टू ग्रेव मैनेजमेंट. मतलब जैसे होता है ना वेलफेयर स्टेट में, बच्चा कंसीव होने से लेके जब तक ग्रेव तक नहीं जाता है, it is the responsibility of the state. Same thing in case of materials, the moment you think of material till you dispose, the whole responsibility is called materials management. Okay. Now I'll show you some statistics. Statistics देखने से आपको पता चलेगा कि मतलब the volume of work we are doing, materials management का जो ये है, जैसे you people might be getting सरप्राइज के यहाँ पे रेलवेज में एक अलग सर्विस है जो कि IRSS है, जो इट इज ओनली डूइंग दिस जॉब. तो फॉर मेनी ऑर्गेनाइजेशन इट बिकम्स ए सरप्राइजिंग थिंग. भाई एक सिर्फ मटेरियल्स मैनेजमेंट के लिए एक डिपार्टमेंट, एक कैटर बनाया गया है. बट इफ यू सी द वॉल्यूम ऑफ थिंग्स, यू विल अंडरस्टैंड कि नहीं, इसका कितना जरूरत है वो ये. ठीक है. सो देयर आर 17 zones, 8 production units, 1,30,000 stock items in 262 stores stocking depots. I am talking stores stocking depot. Not you all will have small depots. Every consignee will have a small depot. That is called sub depot. Main depot जो कहते हैं 262, जहाँ पे stores officer is posted. तो ये हो गया stocking depots. ठीक है. We also have non-stock item equal numbers. तो स्टॉक नॉन स्टॉक क्या है मैं बताऊंगा आगे, आपको क्लासिफिकेशन में बताऊंगा. ठीक है. आवर परचेजेस इन ए ईयर इज मोर देन 62,000 crores. दिस इज 18-19 फिगर आई एम शोइंग. 19-20 का फिगर ऑलरेडी प्रोविजनल आ चुका है. इट इज अराउंड 70,000 crores. ठीक है. 70,000 करोड़ की मटेरियल हम लोग परचेज करते हैं साल में. सो नाउ ऑफ कोर्स 70,000 करोड़ का परचेज करके फिर उसको यूज करना है. सो somebody has to be responsible for this level of volume of transaction. Okay. So where from we buy this material? What is the nature of use? So basically most of our purchases are for the manufacturing of rolling stock. ICF, RCF, आजकल BLW उसको कहते हैं, पहले DLW कहते थे, CLW. ठीक है. ये जो 8 ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा था, ये इसमें ये सब इसी में ही 30,000 करोड़ का मटेरियल खर्चा हो जाता है, उसमें लगता है. बाकी ऑपरेशन में 13,500 करोड़ की, स्टोर्स कंस्ट्रक्शन में 3,000 जाता है. ये सब उसका जनरली हमारा एक्सपेंडिचर ये है. आवर मेन परचेजेस आर डन बाय द जोनल रेलवेज 63%. रेलवे बोर्ड व्हील्स एंड एक्सेल टाइप आइटम जो ग्लोबल टेंडर्स होता है उसको करता है बेसिकली. ठीक है. आवर 10% of our purchase is from small scale industry, 20% from PSU. सबसे बढ़िया बात है हम लोग 98% मटेरियल इंडिजिनाइज्ड है. इसका क्या मतलब है? हम लोग मेक इन इंडिया जब से चालू नहीं हुआ था, ये मुहिम जो नहीं चला था, उससे पहले ही हम लोग वी हैव ऑलरेडी अचीव दैट टारगेट. ओके. दिस इज द स्क्रैप डिस्पोजल फिगर ऑफ इंडियन रेलवे. 4,200 करोड़ की स्क्रैप हम लोग बेच के पैसा ले लेते हैं, कमा लेते हैं रेलवेज के लिए. ठीक है. थिंक अबाउट इट.
4,200 करोड़ का मटेरियल हम लोग मतलब उतना पैसा कमा लेते सिर्फ स्क्रैप बेच के, जो कि बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज का टर्नओवर नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज द लेवल ऑफ वर्क वी आर डूइंग हियर। एंड उसमें क्या है कि इफ वी सी द टाइप, आप ग्राफ देख के आपको थोड़ा सा मन में आता होगा ये क्या बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्यों? दिस डिपेंड्स ऑन बेसिकली ट्रैक रिन्यूअल। अगर ट्रैक रिन्यूअल ज्यादा होता है तो हमारा ट्रैक सेल्स ज्यादा होता है। बेसिकली 70% ऑफ आवर सेल्स आर फ्रॉम स्टील आइटम्स, बेसिकली पीवे आइटम्स। तो उससे हम लोग वी आर गेटिंग दिस स्क्रैप फ्रॉम दैट। ये ओके, सो दिस इज द रीजन फॉर दिस वेरिएशन इन द ये। ऑफ कोर्स देयर इज अनदर फैक्टर व्हिच इज स्टील प्राइस। मार्केट क्या ये करता है उसके बेसिस पे भी वेरी करता है। अगर स्टील प्राइस थोड़ा सा सबड्यूड है तो रेट भी थोड़ा कम आएगा, तो देन योर टोटल परचेज वैल्यू विल रिड्यूस। अगर 10% कम हो गया तो आप उसी हिसाब से देख लीजिए 10% के मार्जिन से कम होते जाएगा। तो फ्रॉम 2010 to 15 प्राइसेस ऑफ स्टील वर वेरी लो, थोड़ा सा कम था, फिर उसके बाद थोड़ा सा मार्केट पिकअप किया है। ओके, now why we do that again, let me tell, it is not only for the taking that money, it is also for there a lot of regions are associated with scrap disposal, ठीक है। एक तो है कि आपको स्क्रैप डिस्पोजल करते हैं तो आपका ऑफिस, आपका यार्ड क्लीन रहता है, इट लुक्स बेटर। ऑफ कोर्स वेस्ट मैनेजमेंट बेटर वे में करते हैं, यू सिट इन ए बेटर वे, ये योर moral ये। but more than that, even many times we have an accident, if there is a train accident, if coaches are lying there and engines are lying, so those people, your customers will have a pure psychosis कि ये ऐसा तो नहीं हमारे साथ भी हो जाएगा ये। तो we try to clear them that also, for that reason also। it's not only कि पैसा निकालना है, पैसा कमाना है, but please understand, please understand, we don't take this as part of the income, please understand this part। स्क्रैप सेल का जो पैसा आता है 4,200 करोड़, आप ये नहीं कहेंगे कि मेरा 20,000 करोड़ हुआ टिकट सेल में और फ्रेट में से और 30,000 करोड़ हुआ, 50,000 करोड़, और ये 4,200 उसमें ऐड कर दो, 54,200 टोटल प्रॉफिट। नो, दिस इज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट। स्क्रैप सेल इज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट। इसका क्या मतलब है? अगर 100 रुपया का कोई सामान खरीदे हैं, यू यूज इट, आफ्टर दैट यू सोल्ड एट 10 रुपीज, स्क्रैप सेल, तो आप कहेंगे नहीं नहीं मेरा इनपुट कॉस्ट 90 रुपीज है, ठीक है। इज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट, नॉट द पार्ट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। अगर आप नहीं बेचेंगे तो ये होगा। इट इज नॉट ए मोर फोटो, इट्स ए फोटो। यू कैन गो टू खड़गपुर एंड सी दिस ब्यूटिफुल विजुअल्स। देखिए, इफ यू डोंट सेल इट फॉर ए लॉन्ग टाइम, उसके ऊपर पेड़ हो गया, नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव द ये पेड़ को काटेंगे तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हम पकड़ लेगा, और इसको काटने के लिए आपको यू कैन नॉट यूज द मशीन। सो बेटर है इसको कलर कर दो और लोगों को दिखाओ कि भाई देखो हमारे कितना बढ़िया सीन है हमारे ये में। बट दिस इज a show of your inefficiency, your inability to sell it in time. So इसलिए for so many years you are not selling, that's why this thing happened. Okay, so this is a thing which should not be done, rather it should teach you that lesson, not the other way. Okay, now let us go to our subject, which is I will start from classification. जब मैं इतना आपको ये बताया, इतना बड़ा बड़ा फिगर की बात किया, ये इतना वॉल्यूम है, इतना नंबर ऑफ आइटम्स है, 1,30,000 आइटम्स आई टोल्ड यू। ओके, नाउ 1,30,000 आइटम्स को डील करने के लिए इज इट पॉसिबल कि जस्ट कहीं पे भी किसी को रख लीजिए हो जाएगा? वो तो नहीं है ना। यू हैव टू फॉलो ए प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल्स मैनेजमेंट। कैसे करेंगे ताकि प्रॉपरली स्मूथली मटेरियल आएगा, रिसिप्ट होगा, परचेज होगा, इश्यू होगा, स्टॉक वेरिफिकेशन होगा, सब कुछ। तो कैसे करते हैं? द फास्ट एंड foremost job is to classify your stores. Classify कैसे करते हैं? We broadly classify our items into stock and non-stock. Okay. Now, what is a stock item? Stock item is an item which is stocked in your depot. पहले एक broad ये ले लीजिए, stocked in depot, stores depot जहाँ। तो अगर stock हो गया stores depot में, क्यों stock करते हैं? The reason is that there is a uniform demand and consumption. Demand भी है, consumption हो रहा है, इसलिए you have
you are stocking it. Okay, so if your stock यूनिफॉर्म डिमांड है कंज्यूम करें तो यूनिफॉर्म आप रिकूप भी करेंगे, रिकूप मतलब परचेज करेंगे या फिर मैन्युफैक्चर करेंगे. सो दैट्स व्हाई इट इज परचेज फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट पीरियड. एक हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड बना देते हैं. कैसे? तो मैं आज बोलूंगा कि मेरा ये आइटम का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जनवरी से दिसंबर तक है या फरवरी से जनवरी तक है. एक साल का एक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड हम लेते हैं. उसके लिए प्लानिंग करके हम चलते हैं कि हर साल इसका हम परचेज करेंगे, एक साल के लिए परचेज करेंगे. ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट पीरियड. इन केस ऑफ स्टॉक आइटम्स एवरी रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन स्टोर्स डिपार्टमेंट. ओके, प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेंटरी कंट्रोल, डिस्पैच, सब कुछ स्टोर्स का रेस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है. एंड व्हाट आर स्टॉक आइटम्स? एनी आइटम्स यू आर सीइंग इन, यू गो टू अ स्टेशन, यू गो टू अ ट्रेन, वागन देख रहे हैं, यहाँ पे कोच देख रहे हैं, योर अदर आइटम्स यू आर सीइंग इन द स्टेशन इटसेल्फ, बल्ब है, फैन है, एसी, एवरीथिंग विल कम इन दैट कैटेगरी स्टॉक आइटम. ठीक है. Non-stock item on the other hand is of course by definition not stocked in depot. Why don't we not stock? Because it is not required regularly. Once in a while it is required, so that's why we never stock it. Okay, so stores का responsibility इसमें सिर्फ procurement का रहता है, बाकी पूरा responsibility user department का रहता है. प्लानिंग करना है, पैसा कहाँ से आएगा, फाइनेंस कौन करें, अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, एवरीथिंग. देन यू गेट द मटेरियल, प्रोक्योरमेंट करके स्टोर्स दे देगा आपको, और आपको उसको बिल पासिंग करना है, बिल पेमेंट करना है, इसका यूज करना है. प्रॉपरली यूज नहीं करेंगे तो भी पहुंच जाएंगे ऑडिट वाले कि क्यों आप मटेरियल लिए और 2 साल से यूज के नहीं किए, इसलिए क्यों पड़ा है. सो दैट क्वेश्चन विल कम टू यू. सो बेसिकली नॉन स्टॉक में रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द यूजर डिपार्टमेंट. नाउ आई विल टेल द बेनिफिट ऑफ स्टॉकिंग एन आइटम. हमारे रेलवे का रूल है कि अगर आप साल में 2 बार से ज्यादा परचेज करते हैं कोई आइटम, मतलब रेगुलरली परचेज करते हैं, सो यू शुड स्ट्राइव फॉर मेकिंग इट स्टॉक आइटम. क्यों? स्टॉक आइटम बना देते हैं तो उसमें आपको स्पेसिफिकेशन क्लियर हो जाता है, पार्टिसिपेशन ऑफ इन द टेंडर कॉम्पिटिशन बिकम्स वेरी हाई, तो आपको रेट कम होता है. वी हैव सीन दैट द मोमेंट हम लोग नॉन स्टॉक और स्टॉक में कन्वर्ट करते हैं, रेट कम्स डाउन टू बाई 30 to 40%. 100 रुपए का सम 60-70 में मिलता है, क्योंकि पार्टिसिपेशन बढ़िया हो जाता है, ऑल इंडिया लेवल में कंपटीशन होता है, बल्क परचेज होता है, तो बल्क परचेज का एडवांटेज लेते हैं, सब बेनिफिट हम लोग ले लेते हैं इससे. तो इसीलिए वी ट्राई टू कन्वर्ट एज मच पॉसिबल फ्रॉम नॉन स्टॉक टू स्टॉक. ओके, सो फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है हमारे आइटम्स का? हम लोग ऑर्डिनरी स्टोर्स कहते हैं. किसको कहते हैं? ऑल दो स्टोर्स केप्ट इन आवर stores depot, normal items, उसका कुछ ये नहीं, we call it ordinary stores. Some stores are called emergency stores. Which are those stores? Those stores जहाँ पे immediate replacement की जरूरत होता है. जब अगर खराब हो गया तो you cannot just stop for a minute. जैसे आपका लेद का एक टूल है, अगर टूल खराब रहता है, आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है, आप can you go and buy from market at that moment? No, because whole work will stop. What you do? You keep an extra piece. That is called emergency store. Okay. Special stores क्या होता है? If you require some item for a particular purpose, जैसे आपको बता रहे हैं एक बल्ब है, आप नॉर्मली इश्यू करते हैं, बट आपके एक बिल्डिंग बन रहा है, उसमें 1000 पीस एक्स्ट्रा चाहिए बल्ब, तो आपको नॉर्मल इश्यू से तो नहीं मिलेगा, तो आपको एक स्पेशल स्टोर के प्रोविजन रखना पड़ता है. उसके लिए आप अलग से खरीदते हैं उतना आइटम. ठीक है, ये हो गया स्पेशल स्टोर्स. कस्टडी स्टोर क्या होता है? ऐसे मत सोचिए कि दीज आर वाटर टाइट बाउंड्रीज कि स्पेशल स्टोर्स कैन नॉट बिकम कस्टडी स्टोर्स और कस्टडी स्टोर्स कैन नॉट बिकम ऑर्डिनरी स्टोर्स. नहीं, इसका नेचर ऑफ जिस टाइम में जो है उस टाइम में हम लोग उसको वो नाम देते रहते हैं. जैसे हम लोग कस्टडी स्टोर किसको कहेंगे? सपोज आप ऑलरेडी परचेज सम आइटम्स, इट में बी स्पेशल स्टोर. 1000 बल्ब खरीद लिए, अब देखिए कि आपके पास जगह नहीं है रखने को, अब आप बोलेंगे नहीं ये इसको रखेंगे तो मेरे पास ना जगह है ना इसको प्रिजर्वेटिव करने का सामान है मेरे पास. व्हाट शुड आई डू? यू गिव इट टू स्टोर्स डिपार्टमेंट. सो स्टोर्स क्या करता है? उसको अपने पास रखता है. सो दैट इज कॉल्ड कस्टडी. मतलब बिकॉज स्टोर्स इज ओनली कीपिंग ए कस्टडी ऑफ द आइटम, दे डोंट हैव एनी अदर एक्टिविटी इन दैट. सो दिस कस्टडी स्टोर्स आर आल्सो कॉल्ड एज चार्ज ऑफ स्टोर्स. ठीक है, चार्ज ऑफ स्टोर्स, इसका क्या मतलब है? पैसा आप दे चुके हैं, यू हैव ऑलरेडी पेड फॉर इट, स्टोर्स सिर्फ रख रहा है अपने कस्टडी में. ओके,
So that was why it is called charged off. Then और एक डेफिनेशन है इम्प्रेस स्टोर. व्हाट इज इम्प्रेस स्टोर? इम्प्रेस स्टोर का मतलब है आप अगर कोई आइटम रेगुलरली यूज करते हैं, मान लो इट इज योर पेपर, तो आप एक इम्प्रेस क्रिएट करेंगे स्टोर्स के पास. स्टोर्स डिपो में एक इम्प्रेस होता है, मतलब आप 10 पैकेट पेपर चाहिए तो आपको 3 महीने का अलाउड है, 2 या 3 महीने का अलाउड होता है, तो आप 30 पैकेट अपने पास रख सकते हैं. आपका छोटा डिपो होगा, अलमीरा में भी हो सकता है आप रखेंगे, तो आप रख लिए और आप हर महीना यूज करेंगे और जितना कम हो जाएगा एट द एंड ऑफ द मंथ यू गो एंड रिकूप इट फ्रॉम स्टोर्स डिपो. मान लो 30 का रखे हैं, 12 पीस खत्म हो गया तो आप 12 पीस रिकूप करेंगे फिर. तो दैट इज कॉल्ड इम्प्रेस स्टोर. ठीक है, इसका प्रोसीजर बहुत इजी होता है, इसलिए कि लोगों को, बिकॉज इट इज नॉन कि ये लेगा हर महीने में 10, तो हमारा प्रोसेस भी काफी इजी हो जाता है उसके लिए. ठीक है, एनी क्वेश्चन ऑन दिस? इफ यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन यू कैन ऑलवेज आस्क, अदरवाइज मुझे लगता है तब से मैं कंप्यूटर से बात कर रहा हूं. Anytime you feel like asking a question, please unmute and ask. नहीं तो people must be feeling also sleepy. तो आपको अपने लिए भी अच्छा है कि थोड़ा सा क्वेश्चन कर देंगे तो आपको भी आपका नींद खुल जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज नोमेनक्लेचर. ठीक है, नोमेनक्लेचर क्या होता है कि बेसिकली व्हाई वी गिव ए नोमेनक्लेचर टू एन आइटम. अगर आप प्रॉपरली बताएंगे नहीं कि आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, अगर आप नहीं बताएंगे तो अगर आपको ये चाहिए तो आपको मिलेगा ये. क्यों? आप ये चाहिए बोले, लेकिन आपका जो बना रहा है मार्केटिंग, मतलब जो आपसे ऑर्डर ले रहा है, सोचा है अच्छा इनको ये चाहिए शायद लग रहा है, तो बेसिकली वो फिर जब आगे बढ़ाएगा चीजों को, देन पीपल विल मिसअंडरस्टैंड एंड फाइनली यू विल गेट समथिंग लाइक दिस. सो टू बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द इंडेंटर, purchaser, supplier and inspector, we make a nomenclature. nomenclature का मतलब है कि हम लोग जो भी एक बोल रहा है, अगर इंडेंटर जो बोल रहा है, परचेजर को वही समझ में आता है, सप्लायर को वही समझ में आता है, इंस्पेक्टर को भी वही समझ में आता है. दैट इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर. नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे करते हैं इंडियन रेलवेज में? We start by description. Description has to be understandable by all the persons involved. User से लेके purchaser, जो भी सबको clear होना चाहिए. So what we do in our case, we make either on basic commodity method हम लोग करते हैं, मतलब basically एक commodity को एक ग्रुप में रख लिए. जैसे बोल्ट हो गया तो हम लोग बोलेंगे बोल्ट M15, M20, M25, M30, एक जगह में एक सीरीज ऑफ बोल्ट उसका रख लिए, बस उसका नेक्स्ट एक नंबर चेंज होता रहेगा जब तक उसका साइज के हिसाब से या शेप के हिसाब से. और वी मेक इट एंड यूज, मतलब अगर आप कोई चीज कहीं पे पर्टिकुलर जगह में यूज होता है, उसी हिसाब से हम लोग उसको रखेंगे एंड यूज के हिसाब से, कि ऑल आइटम्स बिलोंगिंग टू से ब्रेक गियर सिस्टम, तो उसको एक जगह एंड यूज के हिसाब से रखेंगे. ठीक है, दैट इज कॉल्ड देयर आर टू डिफरेंट ये ऑफ डिस्क्रिप्शन. हमारा जो सिस्टम है यहाँ पे हम लोग ऐसे रखते हैं. जैसे एक एग्जांपल दे ना, सोप टॉयलेट ऑर्डिनरी ऐसे लिखेंगे, फिर सोप टॉयलेट से लग्जरी, इस टाइप का हम नाम दे के उसको रखेंगे. सेकंड क्या है? स्पेसिफिकेशन एंड ड्राइंग. हम लोग we give the clear cut specification and drawing of the items. ठीक है, ताकि there will be no confusion regarding what exactly is asked. Okay, ये हो गया. नेक्स्ट है यूनिट. यूनिट का क्या मतलब? अगर हम लोग यूनिट वो देंगे जो हम लोग खरीदेंगे कौन सा यूनिट में और किसी यूनिट में बेचेंगे या फिर इश्यू करेंगे आपके कौन सा यूनिट, तो दैट यूनिट वी हैव टू क्लियर. सो हमारा सिस्टम में क्या है कि हम लोग 2 डिजिट नंबर फॉलो करते हैं. जैसे हम कहते हैं नंबर्स के लिए 01 है, पेयर के लिए 02. तो आपका जो रिक्वेशन होगा, जो डिमांड में एक रहेगा यूनिट क्या है, तो 02 लिख देगा, तो आपको समझ में आएगा ये पेयर में मांग रहा है आइटम को. अगर यूनिट बोला 51 तो इट विल बी लीटर. ठीक है, दिस वे वी मेक द यूनिट ऑल्सो, वी डिफाइन द यूनिट्स. And last, but that is the most important thing, is PL number. PL number is price list number. Okay. Price list number. Price list number क्या होता है? Codification of our items. हम लोग अपने आइटम्स को कैसे कोडिफाई करते हैं? Through this price list. Price list मतलब हम जो कोडिफिकेशन सिस्टम है, आप ये इंटरनेशनल सिस्टम है, ऐसा कुछ
वी आर नॉट डूइंग समथिंग न्यू और कुछ रॉकेट साइंस नहीं करते हैं. इट इज ए प्रोसीजर ऑफ एक ISSN जो है उसके बेसिस में हम लोग करते हैं. हमारा जो कोडिफिकेशन होता है 3 टाइप का होता है. एक नॉन सिग्निफिकेंट होता है, एक फुली सिग्निफिकेंट होता है, या सेमी सिग्निफिकेंट. मतलब अगर आप किसी को नंबरिंग करते करते आप बोले कि 1 2 3 4 कर दिए तो दैट इज नॉन सिग्निफिकेंट. सपोज मैं एक बक्सा बनाता हूँ, इसमें 4 ये है, तो मैं बोल दिया कि 1 2 3 4. आपको पता नहीं 3 कौन सा, किसको मैं 3 बोल रहा हूँ. 3 कैन बी दिस ऑल्सो. सो दिस इज नॉन सिग्निफिकेंट. ठीक है. बट इफ आई मेक ए बक्सा एंड आई गिव अ नेम, ये उसको मैं बोला टॉप लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम राइट. तो द मोमेंट आई से BR आपको समझ में आ जाएगा कि ये कोने कोने वाला बक्सा की बात कर रहे हैं. सो दैट इज फुली सिग्निफिकेंट. ठीक है, ये फुली सिग्निफिकेंट हो गया. सेमी सिग्निफिकेंट क्या होता है? जो अगर कुछ कोडिफिकेशन किए और कोई उसमें कुछ नंबर का सिग्निफिकेंस है, कुछ नंबर का नहीं है, सो दैट इज कॉल्ड सेमी सिग्निफिकेंट. इन रेलवेज वी फॉलो सेमी सिग्निफिकेंट नंबर. कैसा, ये थोड़ा देख लीजिए. इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम वट एवर पॉइंट ऑफ व्यू. आप कल काम करेंगे भी तो ये बहुत ज्यादा यूज होगा, और ऑफ कोर्स एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत ज्यादा यूज होगा. ठीक है. सो आवर सिस्टम, ये 10 लीटर पानी दे दें. आवर कोडिफिकेशन सिस्टम और PL नंबर जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्सिस्ट ऑफ 8 डिजिट्स. ओके. सो 8 डिजिट्स में पहला जो 2 डिजिट है उसको मेन ग्रुप कहते हैं हम लोग. ठीक है. मेन ग्रुप क्या होता है? हम लोग हमारे जो एरिया ऑफ वर्किंग है, जैसे डीजल लोग को तो 10 to 19, इलेक्ट्रिक लोग को 20 to 29, SNT आइटम्स 50 to 59, इस टाइप को हम लोग डिवाइड करते हैं. तो आपको ये पहला 2 नंबर से आपको पता चला कि ये आइटम कौन से डिपार्टमेंट का है या कौन सा ये में यूज होता है, कौन सा एरिया ऑफ वर्किंग में यूज होता है, ये पता चल जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट 2 जो है उसका सब ग्रुप है. ठीक है. सब ग्रुप का मतलब मेजर असेंबली है, उसका फिर माइनर भी पार्ट्स होगा ना. जैसे ब्रेक गियर का बहुत सारा पार्ट आ जाएगा. ब्रेक गियर में पिन लगेगा, ये लगेगा, वो सबको एक फिर सब असेंबली का नंबर देते हैं. तो ये 8 डिजिट में पहला 2 नंबर है मेन ग्रुप, सेकंड ये सब ग्रुप. ठीक है. थर्ड जो 3 नंबर है, अच्छा ठीक, ये है नॉन सिग्निफिकेंट. तो पहला दोनों सिग्निफिकेंट था, ये नॉन सिग्निफिकेंट. नॉन सिग्निफिकेंट का मतलब इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. 001 से स्टार्ट हो जाता है. मतलब पहला आइटम 1 होगा, फिर 2 होगा, ऐसे. तो अभी अगर 058 कहता हूं तो इसी ग्रुप एंड सब ग्रुप में ऑलरेडी 57 आइटम था, ये 58 आइटम है. ठीक है. ये हो गया C, जो तीन जो फिफ्थ 6 7 नंबर. 8th नंबर इज कॉल्ड चेक डिजिट. ठीक है. यहां पे लिखा हूं चेक डिजिट. चेक डिजिट क्या होता है? इट नोबडी गिव्स दिस नंबर, इट ऑटोमेटिकली कम्स. कैसे आता है मैं आपको दिखाता हूं थोड़ी देर में. वो एक मॉड्यूलस 11 का फॉर्मूला है. ठीक है. ISSN का सिस्टम में मॉड्यूलस 11 का एक फॉर्मूला है, उसी हिसाब से आता है. तो ये फॉर्मूला सिर्फ रेलवे यूज, ऐसा है कि स्टोर्स में यूज, ऐसा नहीं. मतलब बेसिकली इट स्टार्टेड फ्रॉम बुक कीपिंग, वहां से सब लोग अडॉप्ट कर लिए क्योंकि दिस इज अ गुड सिस्टम ऑफ कोडिफिकेशन. सो व्हाट हैपेंड नाउ, अभी वागन में भी ये नंबर लगता है, PNR भी आपका वो नंबर है. somebody told me even your PPF is also a semi significant number. तो उसमें क्या होता है कि ये जो डिजिट, लास्ट डिजिट, उसको चेक डिजिट कहते हैं. चेक डिजिट इज यूज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द नंबर. अगर कोई एक डिजिट इसमें चेंज कर देंगे ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. मतलब इट इज डिपेंडेंट ऑन दीज डिजिट्स, बाकी जो 7 डिजिट है. तो मैं इसका कैलकुलेशन कैसे होता है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ. ठीक है. यहाँ पे लिख दिया हूँ, यू कैन गो थ्रू दिस. व्हाट वी डू, मतलब एज पर ISSN, आपका जो नंबर उसको 2 3 4 5 6 में मल्टीप्लाई किया जाता है. ठीक है. जो 7 नंबर है उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 से ये करके 8 तक. ठीक है. जितना भी हो गया वैल्यू इसको ऐड कर देते हैं. सो 146 कम्स. आप अगर इसको, मैं जो एक एग्जांपल लिया हूं उससे पता चल जाएगा.
कैसे होता है। तो फिर उसको आप 11 में डिवाइड करते हैं, तो इसलिए इसको मॉडुलस 11 कहते हैं हम लोग। मॉडुलस, अब इसमें मॉडुलस 8 भी है, मॉडुलस 5 भी है, दूसरे सिस्टम में यूज किया जाता है। तो मॉडुलस 8 का क्या मतलब है, 8 में डिवाइड होगा उसका, तो इसलिए 8 कहा गया। तो इस हिसाब से जस्ट अगर आपको थोड़ा नॉलेज गेन करना है उसमें, जस्ट गो एंड सर्च इन गूगल मॉडुलस 11 क्या है, ISSN में क्या सिस्टम है, थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा ये क्या, मैं किसकी चीज में बात कर रहा हूँ। ठीक है, द मोमेंट यू डिवाइड इट, व्हाट हैपेंस, देयर विल बी ए रिमाइंडर। ठीक है, कुछ भी फिगर आएगा, एक रिमाइंडर आएगा। दिस रिमाइंडर इज द चेक डिजिट। ठीक है, दिस इज द चेक डिजिट इन द सिस्टम। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, पूछ लीजिए, नहीं तो मैं फिर नेक्स्ट ए में जाऊंगा। Okay, so this is the way the PL number is calculated done. Last digit is check digit, which comes from a formula of modulus 11. थोड़ा सा अगर डाउट है, कुछ आपको समझ में मतलब ये हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, ये जो नंबर्स को नोट कर लीजिए, मैं दो दिया हूं ना यहाँ पे, तो एक इसमें कैलकुलेट करके देखिए ये नंबर आता है नहीं आता है, फिर दूसरे नंबर में आप कैलकुलेट ये करके देखिए कि ये नंबर में क्या होगा चेक डिजिट। यू कैन डू योरसेल्फ। ओके, okay, now that I told about codification, I will go to the next ये। अब देखिए मैं एक एक चीज कैसे बता रहा हूँ। पहले तो आपको ओवरऑल बता दिया स्ट्रक्चर क्या है, मटेरियल्स मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, हमारे ये क्या है, अपने जो ये दर्शिल बोलो कौन ये कर रहा है, उसको बोलो अभी बंद करेगा, क्लास चल रहा है। ठीक है, फिर आई टोल्ड अबाउट स्टैटिस्टिक्स, कितना हमारा ये है। देन आई टॉक्ट अबाउट क्लासिफिकेशन, उसके बाद नोमेनक्लेचर की बात किया। नाउ आई एम टॉकिंग कि हम लोग डिमांड फोरकास्ट कैसे करते हैं। तो डिमांड फोरकास्ट करने के लिए पहले तो पता होना पड़ेगा कि नहीं हमारा कंजप्शन कितना है, ये तो पता होना पड़ेगा। कैसे लाते हैं ये फिगर, ऑन द बेसिस ऑफ आवर पास्ट 3 years कंजप्शन। सी सपोज आप पेपर मांग रहे हैं, A4 साइज पेपर, व्हाट हैपेंस, A4 साइज पेपर आप 10 पैकेट बोले हैं, लेकिन आप ले रहे हैं 5, 6, 7, लास्ट 3 साल से हमारे पास डाटा है, हमारे पास 50 साल की डाटा है, तो 5, 6, 7 ले रहे हैं पिछले 3 साल से। सो शुड आई बाई एट अ रेट ऑफ 10? आई शुड नॉट, बिकॉज दैट विल क्रिएट ओवर स्टॉक। तो हम लोग 3 साल का कंजप्शन लेते हैं, स्टॉक आउट देखते हैं, अगर उसमें कोई स्टॉक आउट हो गया तो उसको निकाल देते हैं कैलकुलेशन से। ट्रेंड ऑफ पास्ट कंजप्शन लास्ट ये में कैसे आप ले रहे हैं, जैसे मैं बताया 5, 6, 7 ले रहे हैं, या 6, 7, 6, 5 ले रहे हैं, अपवर्ड कंजप्शन या डाउनवर्ड ट्रेंड। क्यों, अपवर्ड ट्रेंड है तो वो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आप ले रहे हैं आगे और भी ज्यादा लेंगे। अगर डाउनवर्ड ट्रेंड है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। डाउनवर्ड ट्रेंड क्यों हो रहा है, इसका मतलब कहीं पे एक्टिविटी कम हो रहा है आपका। जैसे ICF कोच का आइटम है क्या, उसमें एक्टिविटी कम होगा, डीजल लोगों का आइटम होगा तो कम होगा, अगर इलेक्ट्रिक लोगों को हुआ है LHP कोच का तो ज्यादा होगा। सो दोज थिंग्स आर द पार्ट ऑफ ट्रेंड ऑफ कंजम्पशन। उसी हिसाब से हम लोग सतर्क होते हैं इन इट। अगर पर्टिकुलर डाउनवर्ड है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। नाउ बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट डे, आई विल इंट्रोड्यूस यू टू द three, 4 terms I will be introducing you. One is EAC. EAC is what? Estimated Annual Consumption. इसका क्या मतलब है, अगर साल में आप कितना पैकेट पेपर लेंगे, आप जो बताएंगे यूजर डिपार्टमेंट, दैट इज EAC. ओके, सो नाउ सपोज जैसे 10 पैकेट पर मंथ की बात कर रहा था, तो योर EAC इज 120 पैकेट्स। ठीक है, आपका एस्टिमेटेड है। EMC इज ऑफ कोर्स 1/12, मतलब 10 पैकेट पर मंथ इज EMC हो गया। What is AAC? AAC is calculated by the stores department as per your average or actual consumption. That is AAC. So I will say you have said AMC of 10, but EMC of 10, but your AMC is 6. मैं ऐसे बात करूंगा, तो इसका मतलब है आपका कंजप्शन कम हो रहा है। Now on the basis of your AAC, आपका एक्चुअल कंजप्शन क्या है पिछले 3 साल का, I will calculate the weighted AAC. Okay, so don't get confused by this big equation.
the simple meaning of this equation, I am not asking any question on this कि इसमें calculate करके बताइए weighted AC कितना होगा. No, I'll not do anything like that. Okay, so I'll just I'm trying to explain क्या इसका महत्व है. वेटेड एसी में इस साल का कंजप्शन और लास्ट ईयर कंजप्शन को 3 वेटेज दिया जाता है. उससे पहले साल को 2 देते हैं, उससे पहले को 1 देते हैं. इसका क्या मतलब है? हम लोग सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस देते हैं पास्ट ईयर का कंजप्शन और इस साल का कंजप्शन को. पुराने कंजप्शन को थोड़ा सा लो वेटेज देते हैं. दिस इज द वेटेड एसी. ऑन दिस बेसिस वी प्रोजेक्ट आवर रिक्वायरमेंट. आगे का जो कितना क्वांटिटी खरीदेंगे इस बेसिस में एक फिगर में आते हैं. उसके बेसिस में आगे का प्रोजेक्ट करते हैं. क्यों? आगे प्लानिंग करना है ना. अभी हम लोग डिमांड फोरकास्ट की बात कर लिए, कितना मटेरियल लगेगा. फाइनली सपोज लेट अस टेक ए सिंप्लीफाइड एग्जांपल. 10 पैकेट पेपर आप बोले और ठीक है आप 10 पैकेट ले भी रहे हैं, कोई आपका कम ज्यादा कंजप्शन नहीं हो रहा है, बढ़िया चल रहा है, तो ठीक है. नाउ आई हैव टू डिसाइड हाउ मेनी क्वांटिटी आई शुड बाय. सो माय क्वेश्चंस नेक्स्ट जॉब is to decide how much, कितना क्वांटिटी मुझे खरीदना है, सॉरी when, कब खरीदना है, और हाउ मेनी टाइम्स. ठीक है, ये क्यों चाहिए? ये तीनों चीज क्या इंपॉर्टेंट है? हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव्स है रेलवेज में. तो हमारा जैसे अभी आपको आई थिंक दिस विल बी बेटर एक्सप्लेन ड्यूरिंग योर इन्वेंटरी कंट्रोल क्लास. उसमें हमको कॉस्ट मिनिमाइज करना है, टू मिनिमाइज द कॉस्ट. ये तो हमारा एम है, मिनिमाइज कॉस्ट. कैसे कौन सा कॉस्ट सब कम करेंगे? इसका जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, और कौन सा कॉस्ट? स्टोरेज कॉस्ट. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वेरिफिकेशन कॉस्ट, स्टॉक वेरिफिकेशन जिसको कहते हैं, वेरिफिकेशन कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कितने बार आप इश्यू करेंगे, कितने बार रिसीव करेंगे, स्पेलिंग इज ओके और नॉट, या ट्रांजैक्शन कॉस्ट. तो ये सब चीजों को आप ध्यान में रखते हुए आप ये प्लानिंग करेंगे. हाउ मच, व्हेन, हाउ मेनी टाइम्स. कैसे करेंगे मैं आपको ये बताता हूं. In Indian Railways, we follow a system of annual indent system और annual estimate system कहते हैं जिसको. ठीक है, इसका क्या मतलब है? साल में एक आइटम एक बार खरीदते हैं हम लोग. ओके, तो मतलब मान लो 2000 आइटम कोई डिपो का है, तो हर मंथ बिगिनिंग में 200 आइटम, 150 आइटम इस टाइप का डिवाइड कर दिया जाएगा. पहले से डिसाइडेड है. ओके, सो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, एक उसी हिसाब से प्लानिंग करके हम लोग परचेस करते हैं. तो साल में एक बार खरीदेंगे. हमारा एम क्या रहेगा? सॉरी, चाहे मेरे पास जितना स्टॉक हो, मैं साल में एक बार इसको लेके रिव्यू करूंगा और परचेस करूंगा. तो जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हूं, उसमें बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा. सपोज आई एम बाइंग एन आइटम. आज ये नवंबर महीना चालू हो गया, तो 1/11/2020 को मैं स्टार्ट किया रिव्यू प्रोसेस ऑफ परचेजिंग. सो आई डू इट फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट पीरियड अगेन फ्रॉम व्हिच विल स्टार्ट एग्जैक्टली 1 year आफ्टर टुडे. मतलब आज से 1 साल के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड स्टार्ट होगा, और 1 साल तक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहता है 12 महीने. ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जिसके लिए परचेज करते हैं. द पीरियड फॉर व्हिच वी प्लान टू बाय द मटेरियल इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट पीरियड. ओके, अगर किसी को फिर भी डेफिनेशन का ये आता है तो मैं यहाँ लिख ही देता हूं, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड. ओके, देन अनदर टर्म व्हिच इज कॉल्ड इंटरिम पीरियड, आईपी, जिसको मैं लिखा हूं. ठीक है, ये आईपी है. आईपी क्या क्या मतलब है? द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ प्लानिंग टिल the date of start of contract period is called interim period. ठीक है, 12 months. ये भी हो गया 12 months. अब मुझे प्लानिंग करना है, मेरा मटेरियल प्लानिंग, जो कि 31/10/2022 तक चलेगा. मतलब सोचिए आज के डेट में मैं 2 साल के लिए प्लानिंग कर रहा हूं. ओके,
सो हाउ व्हाट विल बी माय नेट प्रोक्यूरेबल क्वांटिटी? नेट प्रोक्यूरेबल क्वांटिटी कितना होगा? एनपीक्यू जिसको हम कहेंगे। रिक्वायरमेंट कैसा है? 12 महीना आईपी है, 12 महीना सीपी है, ठीक है, इनटू मंथली कंजप्शन। सपोज मंथली कंजप्शन 10 पीस है तो 10 हो गया, ठीक है। इससे हम माइनस कर देंगे हमारे पास जितना स्टॉक है और ड्यूज है। ड्यूज का क्या मतलब है? परचेज ऑर्डर, मान लो एक ऑर्डर दे दिए, आ ही रहा है मटेरियल, अभी 2 महीने में आ जाएगा, ऑर्डर चला गया लेकिन मटेरियल हाथ में नहीं है, मटेरियल आ जाएगा। तो या तो वो हो सकता है, या फिर कोई टेंडर प्रोसेसिंग स्टेज में ऑलरेडी टीसी बैठा है, टेंडर कमिटी बैठा है, 15 दिन में ऑर्डर निकल जाएगा, तो another 3-4 months मटेरियल विल कम, तो हम उसको कहते हैं ड्यूज, कवर ड्यूज और अनकवर ड्यूज, इस टाइप का नाम देते हैं। कवर मतलब परचेज, जिस ऑर्डर जिसका निकल गया कवर ड्यूज, परचेज ऑर्डर नहीं निकला तो अनकवर ड्यूज, ये कहते हैं। तो ये हो गया कैलकुलेशन। इसमें से एक बफर स्टॉक ऐड करते हैं। इसमें जैसे मैं एग्जांपल दिया, बफर स्टॉक 1 मंथ लिखा हूं। 1 मंथ मतलब हमारा जो सिस्टम है उसमें कहते हैं कि 1 महीने के हाथ में रखो। क्यों? बफर स्टॉक इज केप्ट फॉर इमरजेंसी पर्पज, ठीक है। तो 1 महीने का अगर रखे तो 1 महीने का कितना चाहिए? मंथली कंजप्शन 10 है तो 10 पीस रखेंगे, ठीक है। तो हमारा फाइनल कितना रिक्वायरमेंट हो गया? कैन एनीबॉडी जस्ट कैलकुलेट एंड टेल मी कितना? एनपीक्यू, नेट प्रोक्यूरेबल क्वांटिटी कितना हो गया अब? Yeah, can somebody just come up? I think people are sleeping or what? अरे कोई तो बताओ। Sir, 100. 100, very good. So basically 100 pieces you will be requiring. कहाँ गया? Sorry. 100, isn't it? So how much आ गया आपका? पहला क्वेश्चन आंसर दे दिए आप। Now when, कब चाहिए ये देखिए। नाउ इफ यू गो बाय द प्रोसेस, अगर देखेंगे तो 1/11 से आप चालू किए, इसको टेंडरिंग करेंगे, प्रोक्योरमेंट करेंगे, उसके बाद डीपी कुछ लेगा, डिलीवरी पीरियड कुछ लेगा वो फार्म, तो ये मान लो प्रोसेस टोटल मिला के मान लो 4 महीना लगता है। तो आपको नॉर्मल केस में अगर 1/11 से मैं चालू किया तो हो सकता है मुझे मटेरियल 1/3/21 को मिल जाएगा, ठीक है। नाउ थिंक अबाउट इट, थोड़ा सा आप सोचिए। मान लो मेरा मटेरियल कॉस्ट इज, कॉस्ट ऑफ मटेरियल 100 पीस का मान लो 1 करोड़ है। वन करोड़ का मटेरियल है। शुड आई बाई ऑन 1/3/21? अगर मटेरियल नॉर्मल प्रोसेस में जाता हूं तो 1/3 को मेरे को मटेरियल मिल जाएगा। तो शुड आई गो फॉर इट? नो। क्यों? 1/3 को मटेरियल आ जाएगा तो 1 करोड़ रुपया देना पड़ेगा पहले। तो हमारा तो फाइनेंशियल सिस्टम में चलता है ना, तो 31/3 तक आप 1 करोड़ को देना पड़ेगा, क्योंकि रिसीव द मटेरियल, यू हैव टू पे फॉर इट। नाउ इफ यू पे दैट मनी, बेसिकली यू आर ब्लॉकिंग द फंड ऑफ दिस ईयर। इस साल के जो पैसा आया है उसको ब्लॉक कर रहे हैं। व्हेन यू डोंट रिक्वायर मटेरियल टुडे और आफ्टर 4 मंथ्स, आपको रिक्वायरमेंट कब होगा आपको पहले ये देखना पड़ेगा। कैन समबडी टेल मी when I will require this, actually require होगा मटेरियल रिक्वायरमेंट कब आएगा? गोइंग बाय दिस फिगर्स, सो हमारे पास स्टॉक और ड्यूज जो मिला के, स्टॉक हाथ में कितना है, ड्यूज कितना है, मिला के कितना है? 150 है, isn't it? तो मेरे अगर एएमसी मंथली कंजप्शन 10 है तो हाउ मेनी मंथ्स दिस विल मटेरियल विल दिस विल लास्ट फॉर हाउ मेनी मंथ? कैन समबडी से? कितना महीना? 15 months, या गुड। सो 15 months के लिए आपको ये लास्ट करेगा। अगर आप इसमें बफर स्टॉक माइनस कर दें, क्योंकि 1 महीना को हाथ में रखना पड़ता है ना, सो देन ऑल्सो इट विल बिकम 14 months। बफर स्टॉक को निकाल देते हैं अपने हाथ, ये कि ठीक है 1 महीना तो रखना ही पड़ेगा एक्स्ट्रा 1 महीने का। सो अगर 14 months का स्टॉक और ड्यूज है मेरे पास, सो व्हेन आई विल बिकम आउट ऑफ स्टॉक ऑफ मटेरियल, अगर आज 1/11/2020 है, 14 मंथ्स उसमें ऐड कर दीजिए, कितना हो गया?
somewhere here कितना होगा ऑलमोस्ट 1 12 1 2 1 2 2022 isn't it? उस तारीख को हमको मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, आज नहीं पड़ेगी। अगर यही है 1/2/2022 को चाहिए सपोज, तो व्हेन शुड आई टेक द मटेरियल एक्चुअली? थोड़ा 1 महीने पहले लेना चाहिए मुझे। उससे पहले लेंगे तो क्या होगा, अननेसेसरी स्टॉक भर जाएगा। 1/1/22 को एक्चुअल मटेरियल चाहिए हमको, isn't it? So when मैं जब बोल रहा हूं ना, ये उस क्वेश्चन का आंसर देता है कि when, कब मुझे चाहिए। एक ठीक है, 1/1/2022 को जाके मुझे चाहिए मटेरियल, अभी नहीं चाहिए। तो मैं अपने डीपी उसी हिसाब से सेट करूंगा। डीपी क्या होता है? डिलीवरी पीरियड। डीपी विल बी 1/1/2022। ठीक है, मैं ये लिखूंगा मेरे टेंडर में कि डीपी इतना दीजिए। नाउ कम्स द क्वेश्चन, 1 करोड़ का मटेरियल है, 1/1/2022 को क्या मैं पूरा क्वांटिटी ले लूं, पूरा ऑल 100 नंबर्स, और शुड आई टेक इन पार्ट्स, जिसको कहते हैं हम लोग स्टैगर्ड डीपी। स्टैगर्ड डीपी, व्हाट इज स्टैगर्ड डीपी? बेसिकली you don't want to take all the material on 1/1/2022। क्यों? एक वही प्रॉब्लम रहेगा, ये 31 दिन और ओनली फ्यू डेज आर देयर, 3 महीने बाकी है। अगर आप उस टाइम में 1 करोड़ का मटेरियल लेंगे, आपको पैसा देना पड़ेगा। और क्या प्रॉब्लम होगा, एक साथ इतना सारा मटेरियल आएगा, स्टोरेज कहाँ करेंगे, स्टोरेज का इश्यू आएगा, फिर प्रिजर्वेशन का इश्यू आएगा, सो मेनी थिंग्स विल। हाँ, एक साथ इतना सारा मटेरियल आएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, ये सब चीजों को आप ध्यान में रख के देते हैं। सो हाउ डू आई प्लान माई डीपी नाउ? इफ यू थिंक अबाउट इट, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे, ये समझ जाएंगे कैसे होता है। तो 31 दिन हमारा टारगेट रहता है, उससे पहले वी विल टेक मिनिमम मटेरियल जितना मेरा 31 दिन तक चलेगा, या फिर थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, सो आई विल से एक को मैं ले रहा हूं, 3 महीने का मुझे चाहिए, तो मैं कहूंगा 30 नंबर्स बाई 1/1/22। ठीक है, इतना मुझे चाहिए, इतना में मेरा 3 महीना चला जाएगा। नाउ आई विल से 31 दिन खत्म हो गया, आपका वो टेंशन खत्म हो गया, इन्वेंट्री वाला टेंशन कि मेरे पास ज्यादा मटेरियल हो जाएगा, वो पैसा देके इन्वेंट्री बढ़ाएंगे। नो, दैट विल नॉट बी देयर। नाउ यू कैन बी लिटिल फ्लेक्सिबल, आप कह सकते हैं और 30 पीस यू कैन आस्क, और 40 नंबर्स। इसमें हम लोग कैसे कहते हैं इंडियन रेलवे में, आफ्टर 131 हम लोग ये लगा देते हैं कंडीशन। क्यों? उसके पहले नहीं देने का, बट बिफोर 30 साल टाइप का हम लोग देते हैं। ठीक है, इसका मतलब है इससे 31 दिन से पहले नहीं दे सकते हो तुम मटेरियल, देने से भी हम पैसा नहीं देंगे आपको। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद बाकी जो 30 पीस और बचा, हम लोग वी कैन टेक आफ्टर अनदर 3 मंथ्स और 4 मंथ्स। ठीक है, 3 30 ये बाई से हम लोग कहेंगे कि से एक साथ या 1/8 हो जाए, जो है 1/8/22, इस टाइप का हम लोग इसको डीपी देंगे। सो नाउ योर इश्यू ऑफ हाउ मेनी टाइम्स आई रिक्वायर, दैट इज ऑल्सो सॉल्व। तो इस केस में क्या हुआ, मैं जो आपको पॉइंट से यहाँ बताया था, मिनिमाइज कॉस्ट, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री कॉस्ट, वेरिफिकेशन कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये सब आपको पूरा ध्यान में रखते हुए यू प्लान फॉर द net procurable quantity, DP, staggering DP, everything. This comes in annual indent system. Okay. Any questions on that? This. Sir, how do we decide this 30, 40 and 30? This one. Staggered delivery. Delivery. See, a lot of things come into picture. It is not that this simple, whatever I am talking. So yeah, it is not that simple. When you sit on that procurement committee, और आप जिसमें जब member बनेंगे, आप भी being user department also, आप देखेंगे उसमें बहुत सारे फैक्टर आता है। कैसे, ये 30 लूं या 40 लूं या 20 लूं, उस पर डिपेंड करता है। सपोज यू से कि नहीं, मेरे को तो हर महीना फिर 10-10 दे दो, आराम से काम चलता रहेगा मेरा, मेरे को क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, बट उसमें क्या होगा, फार्म विल से सर इफ यू टेक
everyone's 10, मेरे ट्रक में आधा ट्रक आएगा, it will not be full truck, and the transportation cost will be the same for half truck load या full truck load. तो अब ये हो जाएगा कि I will charge 10,000 rupees for whatever, so your transportation cost will increase. You have to take into account कि मेरे गोडाउन में ज्यादा सामान ना रहे, इन्वेंट्री ना बढ़े, एट द सेम टाइम माय कॉस्ट ऑफ प्रोक्यूरमेंट डजंट इंक्रीज, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल बी पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोक्यूरमेंट, दैट शुड आल्सो नॉट इंक्रीज. तो ये सब मिला के एक आप सोचते हैं फॉर ईच एंड एवरी आइटम, टाइप ऑफ आइटम. जैसे आप ऊल खरीदेंगे तो उसमें हो सकता है बहुत वॉल्यूमिनस होगा, सो यू हैव टू गिव दैट टाइप ऑफ ये. बट इफ यू आर बाइंग लोहा लकड़ इस टाइप से सामान खरीदते हैं तो ठीक है, यू कैन ऑलवेज गो फॉर ए स्मॉल क्वांटिटी, 10 नंबर चल जाएगा. लेकिन बड़े बड़े ये में थोड़ा नहीं, आपको क्वांटिटी का ध्यान देना पड़ता है. ठीक है, सो टेकिंग ऑल दिस फैक्टर्स यू डिसाइड द क्वांटिटी इन द स्टैगर्ड डीपी. Any other question? I'm finding your group is asking very less questions. Generally, इससे पहले काफी सारा questions आता था. I don't know whether my teaching level has gone down or my expectation has gone high. So anyway, if you don't have any question, I'll stop here. There is another method of procurement that is called minimum maximum method. This I'll not be talking to you. इस PIM साहब इसके बारे में बात करेंगे. We will be talking about inventory management. इसका जो मॉडलिंग कैसे होता है, मैथमेटिकल मॉडलिंग. अब बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे, जस्ट इट विल बी द बेसिक ये. तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द अदर मेथड्स आल्सो. ठीक है, इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन, I will leave the meeting at this moment. Okay. Fine. Thank you very much. Thank you, sir.